हाई एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मुझे इस वीडियो के लिए बहुत डांट पड़ने वाली है बिकॉज कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि कैट को क्रैक करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 6 मंथ्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन। एंड उस वीडियो को देखने के बाद मेरी एक जूनियर का मुझे कल मैसेज आता है एंड शी इज़ लाइक, श्वेता वाई डू यू से कि इट कैन नॉट बी डन इन 3 months। शी इज़ लाइक, मैंने खुद 3 महीने में किया है यार। So at that point, I told her कि यार you might be able to do it, majority people cannot, and she pushed me to make this video to inspire any person जिसने अभी recently अपनी CAT की preparation start की हो, and she was like, let them know that there are tricks which can help them score more than 99 percentile in this exam. She is actually a living example. उसके 99.59 आए थे CAT में, but she used a very very specific strategy जो काफ़ी risky है. So even though I am sharing her strategy in this video, I would still say 2 things. First of all, वो काफ़ी smart है, even though she may not agree with that, I would still say that she is pretty smart and she picks up things pretty fast. So treat it as an inspiration, but at the same time, if you want to do it too, you will have to work definitely बहुत ज़्यादा. It requires a lot of hard work along with smart work. Secondly, she was a non-engineer जिसका quant weak था लेकिन verbal naturally बहुत strong था. She loved reading books. So comparatively बाकी लोगों से उसको English में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी. So please keep both these points in mind before you watch the video. I hope it inspires you. That's the purpose because of which I'm putting this up on the channel. But at the same time, I still want to reiterate that you have to work very very hard to nail this exam. So उसने मुझे जो भी points बताए उनको मैंने 5 parts में divide किया है, जिसमें सबसे पहला point है selective preparation. So she was a fresher when she got into IIM Ahmedabad and she was like, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुझे multiple attempts देने पड़ जाएंगे ना CAT में. It's okay. पहली बार clear नहीं भी हुआ तो भी कोई problem नहीं है. And since she had only 3 months at hand, she started picking up only the most important chapters. So what she did was, उसने past year papers उठाए and she started making a trend analysis. Basically, कौन से chapters quant में सबसे ज़्यादा बार feature होते हैं and accordingly she decided to focus on those chapters mostly. उसमें भी उसने अपने comfort level को ध्यान में रखा. So for example, she was sharing कि उसको geometry अच्छी नहीं लगती थी. So उसमें उसने सिर्फ triangles का topic ही pick up किया and she left the rest of it. Selective preparation में एक और point जो उसने highlight किया वो ये कि उसकी एक umbrella strategy थी कि मैं ना quant section में percentile कम लेके आऊँगी और verbal और DILR को push करूँगी. So basically आपका quant अगर कम भी आता है, आप verbal और DILR में ज़्यादा लाके overall percentile को push कर सकते हो 99 के ऊपर. This is a strategy that most non-engineers use, but at the same time it can also backfire. क्योंकि अगर मान लो verbal या DILR बहुत tough आ जाए and quant comparatively easy आ जाए, in that case the sectional cutoffs become difficult to cross. लेकिन broadly over many years it's been seen कि ऐसा होता नहीं है. ऑन एन एवरेज नॉन इंजीनियर्स क्वांट में डिसेंट परफॉर्म कर जाता है. सो अगर आपको भी ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो उसके लिए सिंपल सा मेथड ये है कि आपका जो भी सेक्शन वीक है उसको सिर्फ उतना इंप्रूव कर लो कि वो 95 या 97 परसेंटाइल क्रॉस करने लगे एंड बाकी के दोनों सेक्शंस को 99 क्रॉस करवाने की कोशिश करो. सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग मॉक टेकिंग. सो शी न्यू वेरी वेल कि उसके पास सिर्फ 3 महीने का ही टाइम है. दैट इज वाई शी स्टार्टेड टेकिंग मॉक्स अलॉन्ग साइड प्रिपरेशन. सो अ लॉट ऑफ पीपल फील लाइक कि हम अभी मॉक्स नहीं लेंगे बिकॉज अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है. व्हाट शी सेड वाज कि मैं इतनी ढीठ हो गई थी अपने मॉक्स कोर्स को लेके कि मुझे फर्क ही पड़ना बंद हो गया. ऑल्सो शी बिलीव्ड कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो शी हैड दैट एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेपर कि द मॉक स्कोर्स डोंट अफेक्ट मी, I am only there to analyze the mocks. So she used to take 1 mock every single week in the months of September as well as October. And November के महीने में she took so many mocks. She was like हर दूसरे दिन मैं एक mock ही ले रही होती थी. But September और October में she took 1 single mock. And when I asked her कि ऐसा क्यों, why did you not take more mocks? She said that I tried to spend more time analyzing the mock as compared to taking many mocks. So she was like कि पता तो था ही कि attempt rate low होगा क्योंकि मैंने syllabus ही पूरा नहीं किया है, तो how can I even expect कि मार्क्स आएंगे. सो हर आइडिया वाज कि मैं हर टॉपिक का सिर्फ क्वेश्चन का एनालिसिस देख लेती थी कि सोल्यूशन क्या है. एंड देन शी डिसाइडेड टू नोट डाउन अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट आई एम गोना रेज इन द क्वांट सेक्शन. बट शी सेड कि मेरा मेन आइडिया ये होता था कि मॉक दो एंड एनालाइज कर लो कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं. शी ऑल्सो सेड कि उसकी इस समय 50 to 60 परसेंटाइल आ रही थी एंड शी इम्प्रूव्ड हर मॉक स्कोर्स मोस्टली इन नवंबर. सो शी सेड कि 80 परसेंटाइल क्रॉस नहीं हुई थी उसकी अक्टूबर तक. शी वॉज only scoring till 80 till October.
तो शी वॉज लाइक कि उसका नवंबर में जाके मोस्टली मार्क्स इंप्रूव हुए थे, बिकॉज नवंबर तक तो उसका सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ था। नवंबर 1 से उसने प्रॉपर मॉक्स लेने स्टार्ट किए थे। थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग हर डेली रूटीन। सो शी सेड कि मैं ना कॉलेज स्टूडेंट थी, तो दैट इज वाई मैंने एक माइंडसेट बना लिया कि मैं कॉलेज आवर्स में बिल्कुल भी कैट का ध्यान नहीं दूंगी। इवन मैं कॉलेज से आने के बाद भी आई वोंट केयर अबाउट कैट एट ऑल, विच इज एक्चुअली टू सरप्राइजिंग फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज मैंने ऑनेस्टली कॉलेज के साथ साथ मैनेज किया था कैट को। आई वुड पर्सनली स्टिल सजेस्ट डिस्पाइट वॉट शी सेड कि प्लीज डोंट डू दैट। अगर आप कॉलेज में थोड़ा भी टाइम निकाल पा रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को दो। बट वॉट शी डिड वॉज कि शी वॉज अ नाइट आउल, सो शी डिसाइडेड कि मैं रात को 10 बजे बैठूंगी पढ़ने, एंड दैट्स द टाइम जब मैं सिर्फ कैट को दूंगी। 10 बजे से लेके मेरे से 2 बजे तक बैठा जाए या 3 बजे तक बैठा जाए, दैट इज द टाइम आई वुड डिवोट टू कैट प्रिपरेशन। आई वुड स्टिल से इफ यू कैन नॉट डू दैट, or if you are an early bird, do it as you please. This is just what she did. So she used to stretch her nights to study for this particular exam. अब हम fourth point discuss करेंगे, which is her quant preparation. The sequence that she followed was कि उसने पहले arithmetic cover किया, उसके बाद उसने number system उठाया, then she picked modern math के chapters and finally geometry का सिर्फ triangles portion. She did not take any coaching, but उसने अपने senior से time का material ले लिया था। अब जब वो coaching material solve करने लगी, she said कि पहले तो concept समझ में ही नहीं आ रहे थे, सो दैट इज व्हेन शी स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम द रोधा चैनल। रोधा चैनल की कंसेप्चुअल वीडियोस आती हैं, उसने वो वीडियोस देखी एंड दैट्स व्हेन शी रियलाइज कि बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है वीडियोस देखने में। सो व्हाट शी सेड वाज कि एक तो उसने सारी की सारी वीडियोस को ही फास्ट फॉरवर्ड पे देखना स्टार्ट किया। शी सेड जहां पर भी ऐसा कोई पॉइंट आता था जहां पे कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, लाइक लॉजिक समझाया जा रहा है, वहां पर वो पॉज करके अच्छे से सुनती थी, अच्छे से देखती थी। बट जब भी कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जा रहा है या कोई भी ऐसा पॉइंट है, then she used to fast forward it entirely. She saved a lot of her time in not only doing that but also in not taking up repetitive questions. She said कि एक क्वेश्चन करने के बाद मैं सेम टाइप के जो 5-6 और क्वेश्चन आ रहे हैं उनको स्किप कर देती होती थी। आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि मुझे एक चैप्टर की टाइप्स पता हो, एंड शी वाज लाइक ब्रॉडली 5-10 सी टाइप्स होती हैं हर चैप्टर में। सो आई जस्ट नोटेड डाउन द यूनिक टाइप्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एंड देन ऐसे पेपर्स का मैंने एक बंडल बना लिया। सो जैसे मैंने अपनी फॉर्मूला बुक इस चैनल पे दिखाई हुई है, शी सेड कि मेरे पास ना एक बंडल था ऐसे सारी टाइप्स का जो हर एक चैप्टर में आती हैं। आई डिडंट केयर राइटिंग डाउन द फॉर्मूलाज बिकॉज शी वाज लाइक इवेंचुअली कैट के पेपर में बहुत सारी टाइप्स रिपीट होती रहती हैं। सो हर फोकस वाज टू जस्ट कीप दोज टाइप्स हैंडी, ताकि जब भी पेपर आए शी कुड जस्ट सिंपली गो थ्रू देम एंड डिसाइड कि अच्छा ये उस टाइप का क्वेश्चन है, एंड हेंस आई नो हाउ टू सॉल्व इट, एंड देन शी यूज्ड टू सॉल्व देम। द फिफ्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग हर VARC एंड DILR सेक्शन। इसमें लाइक आई सेड कि शी वॉज नेचुरली गुड एट VARC, सो शी डिडंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन रीडिंग एटलीस्ट। सो व्हेन शी मेंशन्ड कि मैंने स्टार्ट किए मॉक्स देने, शी वाज लाइक कि मेरे को ना कोई भी RC पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो आई यूज्ड टू रीड वेरी क्विकली, बट हर प्रॉब्लम वाज बेसिकली इन मार्किंग द राइट ऑप्शंस, जिसके लिए ऑल शी डिड वाज शी टुक मॉक्स। लाइक शी सेड कि मेरे पास टाइम की बुकलेट्स थी लेकिन मैंने उनको यूज नहीं किया। इवन फॉर DILR शी डिड नॉट यूज अ सिंगल बुकलेट, ऑल शी डिड वाज शी यूज्ड टू टेक मॉक्स एंड एनालाइज देम। शी सेड कि मैं सिर्फ मॉक्स को एनालाइज करती रही, ये समझने की कोशिश करती रही कि सही आंसर आना कैसे था, एंड द मोर आई डिड दैट द मोर आई लर्नड हाउ टू मार्क द आंसर्स राइट। नाउ इवन दो दैट वाज हर स्ट्रैटेजी, आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप जब मॉक एनालिसिस कर लेते हो और जान लेते हो कि ऑप्शन को कैसे मार्क करना है, यू स्टिल गो थ्रू योर मटीरियल एंड ट्राई प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। आई विल रिपीट दिस अगेन, शी इज नेचुरली स्मार्ट। एट द सेम टाइम आई डू अग्री विद हर व्हेन शी इज सेइंग कि मॉक एनालिसिस इज एक्चुअली द की टू गेटिंग द आंसर्स राइट। अगर आप अपना टाइम इस चीज पे स्पेंड करोगे ना कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, यू विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक इन द नेक्स्ट मॉक। सो दीज आर बेसिकली द 5 पॉइंट्स दैट शी शेयर्ड regarding her preparation. I truly hope कि वो लोग जो recently start किए हैं, this helps them, and even the ones who have started way back in June or Jan, I hope that it gives them a structure on how to take the next month forward and how to improve your mock scores as well. अगर कोई भी question है आपके दिमाग में, you can put it down in the comments. Thank you for watching this.